Welcome all. Today's topic is Dijkstra's algorithm. Now it is called as one of the algorithm to find the shortest path in between the source and the destination. Fine. So we'll move forward. This is the algorithm that is whenever we want to find out the shortest path in between the single shortest path problem. So we need this with the help of this algorithm we can find out the solution for this path. Right. So what do you mean by single source shortest path? The problem of finding the shortest path from source vertex V to all other the vertices in the graph. That means in between the graph, if we are having the single source S and we have to find out the distance from the single source to all of the other vertices, then this problem can be solved out using the Dijkstra's algorithm. So what do I mean by it? If one is the single source here, as we can consider one is the single source here. So I want to find out the shortest path for 5, for 2, for 4, 3, for 4, for 3 and for 6 also. So from 1 we have to find out the shortest path. That means source is here the single one. We are not having the multiple sources. That means we cannot change the source from 1 to 5, from 1 to 2 and so on. Fine. So here we are having the single source that is called as the 1. We cannot change source to the 5. We cannot change source to the 4. Fine. So from 1 we have to find out the shortest path for all of the rest of the vertices. So this problem we can find out the solution using the Dijkstra's algorithm. Fine. So we are having applications. What are the applications of Dijkstra's algorithm where we can apply it? We can find it out using the Google Maps. Fine. So in Google Maps the Dijkstra's algorithm can be used. If we are having the MapQuest, then we can also use the Dijkstra's algorithm. Also in the routing system, that means whenever the multiple routers are connected, that means router A, router B, and we are having the single source that means from port A, that is from a single source, that is from router A to router B, I want to find out the shortest path, then we can use here the Dijkstra's algorithm also. In between the multiple sources, means in between the multiple router, if the data packet is transferring from 20.0.0.0 to 40.0.0.0, then from this source to the 40, from 20 to 40, if I want to find out the shortest path, then again I can use the Dijkstra's algorithm also. Fine. So these are the applications of the Dijkstra's algorithm. So what do I mean by Dijkstra's algorithm? What is the we can say design of the Dijkstra's algorithm? How we what are the ways to find out the multiple sources, multiple paths to the Dijkstra's algorithm? We can find out using this one. So Dijkstra's algorithm is a solution to the single source shortest path problem given in the graph theory. It works on both directed and undirected graph. However, all the edges must be non-negative edges. So what do you mean by non-negative edges? If we are having weights on the edges, that means in between A to B we are having 4, so that edge must not reflect any negative number. That means it must not have the negative number, that means -4 it must not have. So this is called as the non-negative weights. Fine. So this is called as the non-negative weights. So what kind of the input and output we can expect from the Dijkstra's algorithm? So input can be weighted graph, that means we are having the weighted graph, and graph is having the edges E and vertices V. Fine. And source again, vertex source again belongs to the set of the vertices. That means we are selecting the source among all of the set of the vertices only. We cannot select the source out of the graph vertex. Fine. That means if we are having the two graph A and B graph, so the if I want to find out the shortest path in the A, I cannot select source from B. Fine. So that must be the connected one. That is called as a weighted graph vertices, and V belongs to small v belongs to the capital V, such that all the edges are non-negative edges. That means non-negative number, that means positive number must be given on the edges. Fine. So what can be the expected output from the Dijkstra's algorithm? We are having the output as the
shortest path, we can have the shortest path for all of the vertices that are connected to the source, and the source must be the single source. Fine. So here, what is the approach of the Dijkstra's algorithm? First, the algorithm computes for each vertex u and the distance to u from start vertex v. That is the weight of the shortest path in between v and u. That means it is computing the shortest distance from source s, if I am indicating source as s, to the u and v if they are connected from the source. Fine. That means if u and v are connected to the source, then I will find out the distance in between u and v from the source v, from the source u. Fine. So the weight of the shortest path in between the u and v. Fine. That is I explained. The algorithm keeps the track of set of vertices for which the distances has been computed, called as cloud C. That means it is nothing but computing the distance, and all the distances are computed and set into or sent into the cloud C. That means we are having any data structure C, cloud C, and then we are storing all the distances that are computed, or the shortest distances that are computed in between the vertices from the source. Fine. So next is, every vertex has a label D associated with it. That means every vertex must have any label. That means we have to label them. मतलब आपको उसको उसमें नाम रखने हैं उसके. लाइक वर्टेक्स अगर आपको दिया हुआ है 0, तो उसको नाम दे दो S. S का डिस्टेंस हमेशा 0 से ही शुरू होता है. ठीक है. सो फॉर एनी वर्टेक्स u, d of u stores the approximation in distance between v and u. The algorithm will update a d of u value when it finds the shortest path from u and v. When इसको हम देखते हैं लाइक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. दिस इज आवर एग्जाम्पल. सो इन दिस एग्जाम्पल वी आर हैविंग डिस्टेंस, multiple distances are there, and vertices are given. The label is given to us A, B, C, D, E, F and G. Fine. So here after that we are having by looking into the diagram we can guess that is first stage is our initialization stage. ठीक है. So जब कभी भी अपनी initialization state आती है, तो सबसे पहले आपको source डिटेक्ट करना पड़ता है. ठीक है. सो यहाँ पे सोर्स हमने डिसाइड किया हुआ है A. ठीक है. सो इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या है, 0 है. रिमेंबर इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आपको सोर्स दिया जाएगा, मतलब आपको दिया जाएगा कि A एक सोर्स है, उसको कंसिडर करो, या आपको कोई भी एक पॉइंट लेके सोर्स डिसाइड करना है. ठीक है. मतलब अगर आपको सोर्स दिया हुआ नहीं है, तो कोई भी एक लेबल या कोई भी एक वर्टेक्स लेके आपको उसको डिसाइड करना है कि भाई ये मेरा सोर्स रहेगा. ठीक है. अदरवाइज आपको अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, तो आपको वही वाला सोर्स लेके कंप्यूट करना है. ठीक है. सो कंसीडर करते हैं ये एग्जांपल में हमें दिया नहीं है कि हमको कौन सा सोर्स लेना है, तो हमने यहाँ पे लिया है सोर्स A. ठीक है. सो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा. हमेशा सोर्स का डिस्टेंस क्या रहता है, 0 रहता है. क्यों? क्योंकि वही से हमको क्या निकालने हैं, सारे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ हमको निकालने हैं. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द वर्टिसेस in the graph, whether they are connected directly or indirectly to the source, they are keeping it all the vertices as infinity. मतलब अगर आप ये एग्जांपल में देख रहे हो, तो B, E, A, G, F and C सारे इनिशियल डिस्टेंसेस, इनिशियल स्टेप में उनके डिस्टेंसेस क्या है, इन्फिनिटी पे दिए हुए हैं. ठीक है. सो हमको कहाँ से अभी निकालना है शॉर्टेस्ट पाथ, सारे वर्टिसेस का A से, और A का डिस्टेंस क्या है, 0 है. ठीक है. सो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशियलाइजेशन. नाउ सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ कि A से कहाँ पे मेरे डायरेक्टेड ग्राफ जा रहे हैं. देखो ये एग्जांपल हमारा डायरेक्टेड ग्राफ का है, तो डायरेक्टेड ग्राफ का है तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा देखने, ना कि नेगेटिव देखने. नेगेटिव मतलब देखो A को इन आ रहा है C से. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव इफ आई एम टॉकिंग अबाउट A to C. ठीक है.
सो आपको इन शॉर्ट आपको आउटपुट वाले ग्राफ्स देखने, आउटपुट एरो जहाँ पे है, मतलब आप ए से कहाँ पे रीच हो सकते हो, बी पे, और ए से कहाँ पे रीच हो सकते हो, डी पे। ए से क्या मैं सी पे जा सकती हूँ, नहीं, इवन दो इट इज कनेक्टेड बट इट इज हैविंग द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए आपको ए से कौन सा स्ट्रेट कनेक्टेड है वो देखने, तो ए से मेरा कनेक्टेड है बी और ए से कनेक्टेड कौन है, डी, ठीक है। सो इनिशियल इसमें अगर मैं देखती हूँ तो ए और बी और डी के डिस्टेंसेस क्या है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। सो अगर मैं ध्यान देना, अगर मैं 0 + 2 करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2, 0 + अगर 2 करती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 2। इफ वेदर इट इज लेस देन इन्फिनिटी, यस इट इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट्स वाई अपडेटेड डिस्टेंस बी का क्या हो जाएगा, 2। अपडेटेड डिस्टेंस बी का क्या हो जाएगा, 2। वाई आई एम कंप्यूटिंग 0 + 2, क्योंकि सोर्स का डिस्टेंस प्लस एज का आपको वेट लेना है, सोर्स का डिस्टेंस प्लस एज का आपको क्या लेना है, वेट लेना है। दैट मीन्स 0 प्लस सोर्स का डिस्टेंस क्या है, 0 + 2, दैट इट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। वेदर इट इज लेस देन इन्फिनिटी, अगर ये लेस देन इन्फिनिटी मतलब आपका जो ओल्ड डिस्टेंस था उससे ये प्रेजेंट डिस्टेंस, ओल्ड डिस्टेंस क्या था मेरा, इन्फिनिटी था बी का, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेटेड क्या हो जाएगा मेरा, 0 + 2। इफ इट इज लेस देन इन्फिनिटी, यस इट इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द डिस्टेंस ऑफ बी इज 2, ठीक है। मतलब मिनिमम आपको लेना है, तो इन्फिनिटी और 2 से कंपेयर करो, इन्फिनिटी कॉमा 2, तो मिनिमम कौन आएगा, 2 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 2 लूँगी, ठीक है। वैसे ही ए और डी के साथ कंपेयर करो, सो 0 + 1, 0 + 1 बिकम्स माई 1, फाइन। वेदर इट इज लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों लिया मैंने, क्योंकि प्रीवियस डिस्टेंस क्या था, डी का इन्फिनिटी था, ठीक है। सो प्रीवियस डिस्टेंस कॉमा प्रेजेंट डिस्टेंस, तो प्रेजेंट डिस्टेंस क्या है, 1 है, और प्रीवियस डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, तो कौन मिनिमम है, 1 मिनिमम है, इसलिए मेरा डी पे डिस्टेंस कौन सा आएगा, 1 आएगा, ठीक है। डी पे डिस्टेंस कौन सा आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से मिनिमम डिस्टेंस किसका है, डी का है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग एंड कैलकुलेटिंग फॉर द डी, ठीक है। सो इसलिए मेरा नेक्स्ट वर्टिसेस कौन आया है, डी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ए से कौन रीचेबल है, बी, और ए से कौन रीचेबल है, डी। सो इन दोनों में मिनिमम कौन है, डी, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है, मिनिमम, इसलिए मैंने डी को लिया, ठीक है। अब डी के साथ और क्या क्या मेरे अपडेटेड डिस्टेंसेस हो सकते हैं। अब मैं डी एस से कहाँ पे आ गई, डी पे आ गई, ठीक है, मैंने डी को सिलेक्ट किया। अब डी से कौन कौन रीचेबल है, डी से रीचेबल है सी, डी से रीचेबल है एफ, डी से रीचेबल है जी, और डी से रीचेबल है ई, ठीक है। सो ये मेरे डी से रीचेबल वाले सारे डिस्टेंसेस हो गए, ठीक है, वर्टिसेस हो गए। अब डी और सी, ठीक है, डी और सी, इसके सारे प्रीवियस डिस्टेंसेस क्या है, सारे इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये सारे अपडेटेड होंगे क्या, यस, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से सारे डिस्टेंसेस मेरे लेस आएंगे, ठीक है, मिनिमम आएंगे, इसलिए मैं ये सारे डिस्टेंसेस अपडेट करूंगी। तो कैसे अपडेट करूंगी, सो माई प्रीवियस डिस्टेंस, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डी से सी का डिस्टेंस अगर मुझको कैलकुलेट करना है, डी से सी का डिस्टेंस अगर मुझको कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी, डी का खुद का डिस्टेंस दैट इज 1 और सी की एज का वेट क्या है, 2, दैट मीन्स 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3। सो ये प्रीवियस इन्फिनिटी से लेस है क्या, यस लेस है, इसलिए यहाँ पे अपडेटेड डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। वैसे ही डी का खुद का डिस्टेंस, इफ आई वांट टू कैलकुलेट फॉर ई के लिए अगर मुझको कैलकुलेट करना है तो, ठीक है। सो ई का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, डी का खुद का वेट क्या है, 1 + ई से एज कौन से, डी ई एज कौन है, 2 है, ठीक है। सो 1 + 2 दैट बिकम्स 3 अगेन। वेदर इट इज लेस देन इन्फिनिटी, यस इट इज लेस देन इन्फिनिटी, इसीलिए ये अपडेट हो गया 3 से, ठीक है। डिस्टेंस नेक्स्ट इज डी एफ, ठीक है। तो एफ का मुझको निकालना है, अभी डी से लेके एफ तक का मुझको निकालना है कि वर्टिसेस एफ में भाई कौन सा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। सो 1 + 8 + 1 दैट बिकम्स 9। सो एफ का अपडेटेड डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, 9, ठीक है। वैसे ही मैं जी के लिए निकालूंगी, तो डी जी इज माई एज, ठीक है, और डी का खुद का डिस्टेंस क्या है, 1। सो 1 + 4 दैट बिकम्स 5, तो जी पे कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, 5, ठीक है। सो दिस इज माई अपडेटेड डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखना है
कि मैं अभी नेक्स्ट वर्टाइसेस डी के बाद कौन सा लूँगी, नेक्स्ट वर्टाइसेस डी के बाद मैं कौन सा लूँगी, ठीक है। सो अपडेटेड डिस्टेंस हो गया मेरे ये सारे। सो अपडेटेड डिस्टेंसेस के बाद अब मैं अगर लेती हूँ नेक्स्ट रिमेनिंग वर्टाइसेस फॉर ए, रिमेनिंग वर्टाइसेस फॉर ए के बाद बचा कौन है, ए के बाद हो गया डी, ठीक है। लेकिन ए से और कौन रीचेबल था, बी, ठीक है। सो अब मैं अगर बी वर्टाइसेस लेती हूँ, क्योंकि मैंने डी ले लिया था, अब मेरा बचा कौन है, बी बचा है। तो अगर मैं बी वर्टाइसेस लेती हूँ, ठीक है। सो बी से कौन कौन रीचेबल है, बी से रीचेबल है डी और बी से रीचेबल है ई, ठीक है। अगर ये दोनों रीचेबल है तो बी और डी और ई का डिस्टेंस अपडेट होगा क्या, डी का डिस्टेंस अपडेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड वर्टाइसेस है, आपको अनविजिटेड वर्टाइसेस ही लेने हैं, ठीक है। सो डी से बी का डिस्टेंस, बी से डी का डिस्टेंस अपडेट नहीं होगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आती हूँ ई पे, बी से कौन अभी रीचेबल है, ई रीचेबल है, ठीक है। अब ई पे अगर मैं आती हूँ तो ई का डिस्टेंस अपडेट होगा क्या, ये मैं चेक करना है मुझे। तो बी का खुद का डिस्टेंस क्या है, 2 प्लस इसका डिस्टेंस क्या है, डी बी ई एच क्या है, 10 है, ठीक है। मतलब 2 + 10 दैट बिकम्स 12। अगर 12 होता है तो 12 3 से लेस है क्या, नहीं, 12 3 से क्या है, ग्रेटर है, इसीलिए ई का डिस्टेंस अपडेट हुआ क्या, नहीं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे देखो नोट लिखा है, डिस्टेंस डी इज नॉट अपडेटेड सिंस डिस्टेंस डी इज ऑलरेडी नोन, मतलब ये ऑलरेडी विजिटेड है। एंड डिस्टेंस ई इज नॉट अपडेटेड सिंस इट इज लार्जर देन द प्रीवियसली कंप्यूटेड, ठीक है। मतलब अभी मेरा कंप्यूटेड कौन सा है, 10 + 2 दैट इज 12 और प्रीवियसली कंप्यूटेड कौन सा है, 3। सो 3 क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू द प्रेजेंटली कंप्यूटेड, इसीलिए वो डिस्टेंस अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। सो नेक्स्ट अब अगर मैं ई पे आती हूँ तो बी से अब मैंने कौन सा लिया, वर्टाइसेस ई लिया है, ठीक है। अब अगर मैं ई पे आती हूँ तो से मैं कौन कहाँ पे रीचेबल हूँ ये मुझे चेक करना है, ठीक है। सो ई से मैं रीचेबल हूँ जी पे सिर्फ, क्यों, क्योंकि सारे यही एक है जो रीचेबल आउट एरो वाला एज है, बाकी सारे कौन से एज है, इन वाले एज है, ई को इन वाले एज है। तो ई से मैं इन बी और डी से मैं इन आ सकती हूँ ई पे, लेकिन मैं ई से आउट जा नहीं सकती बाकी वर्टाइसेस के लिए एक्सेप्ट जी वर्टाइसेस, ठीक है। सो ई से मैं कहाँ पे रीचेबल हूँ, जी पे। तो अब मुझे चेक करना है कि जी का डिस्टेंस मेरा अपडेट होगा क्या, ठीक है। तो जी का करंट डिस्टेंस क्या है, 5 और प्रीवियस डिस्टेंस क्या है, 6 + 3 दैट इज 9, ठीक है। सो 9 इज ग्रेटर देन करंट डिस्टेंस 5, दैट्स वाई अगर ये ग्रेटर है तो ये अपडेट मत करो, मिनिमम डिस्टेंस ही देखो, मिनिमम डिस्टेंस ही लो, ठीक है। इसीलिए उसने जी का डिस्टेंस अपडेट नहीं किया है, ठीक है, इसलिए उसने जी का डिस्टेंस अपडेट नहीं किया है, ठीक है। आफ्टर डी के बाद मैंने कौन सा वर्टाइसेस विजिट किया, बी को, ठीक है। हमेशा जो वर्टाइसेस आप विजिट कर रहे हो उसको शेडेड करो या फिर उसको कलर करो, ठीक है। सो आप जब कभी ये एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको इसको शेड करना है, मतलब ना कलर करते हो आप इसको क्या करो, शेड करो, ठीक है। सो ई के बाद अब मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, डी से, ई के बाद मिनिमम डिस्टेंस है डी का सी से, ठीक है। इसलिए मैं नेक्स्ट वर्टाइसेस कौन सा ले रही हूँ, सी ले रही हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं सी पे आ गई हूँ तो अभी मैं चेक करूँगी कि सी से मैं कहाँ पे रीचेबल हूँ। तो सी से मैं रीचेबल हूँ एक तो ए पे और दूसरा रीचेबल कहाँ पे हूँ, एफ पे, ठीक है। लेकिन ए का अपडेशन होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, और वो सोर्स है। तो सोर्स का डिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा 0 विच इज द मिनिमम 1, दैट्स वाई वी कांट अपडेट एट एनी कॉस्ट द सोर्स डिस्टेंस, ठीक है। तो सोर्स का डिस्टेंस आपको अपडेट नहीं करना है, तो आप हमेशा कहाँ पे रीचेबल हो, एक तो एफ पे ही रीचेबल हो, ठीक है। बाकी इन है, एरो कौन से है, इनवर्ड्स एरो है, ठीक है। तो इसीलिए आप आउटवर्ड्स एरो पे जाएंगे तो सी टू एफ ही है। तो एफ पे अगर मैं विजिट करती हूँ तो मेरा प्रीवियस वाला डिस्टेंस क्या है, एफ का 9 है, प्रीवियस वाला डिस्टेंस क्या है मेरा, एफ का 9 है। अब मैं करंट डिस्टेंस अगर मैं चेक करती हूँ, 5 + 3 दैट इज 8, ठीक है। सो 8 इज लेस देन 9, दैट्स वाई
ये डिस्टेंस क्या हो गया मेरा, अपडेट हो गया। तो मैं अभी एफ को सिलेक्ट अगर, ठीक है, तो अब मेरा डिस्टेंस कहाँ पे आ गया, मेरा एफ पे आ गया है, ठीक है। सो एफ के बाद नेक्स्ट डी से और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे कौन है, ठीक है। सो डी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे सी था, मैंने सी सिलेक्ट किया। सी से मैं कहाँ जा रही हूँ, एफ पे जा रही हूँ। एफ पे मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब डी के बाद, डी से और कौन सा वर्टाइसेस बचा हुआ है, डी के बाद नेक्स्ट, दैट मीन्स ये 2 पे थे और ये 2 पे थे। नेक्स्ट ये एफ के किस पे है, 8 पे है, और ये किस पे है, जी किस पे है, 4 पे है। मतलब मैं नेक्स्ट वर्टाइसेस कौन सा सिलेक्ट करूँगी, जी। अब मैं जी पे जब आ गई हूँ तो अब मैं देख रही हूँ कि आउटवर्ड एरो कौन कौन से है मेरे। तो आउटवर्ड एरो सिर्फ है मेरा एफ पे, ठीक है, सिर्फ है मेरा एफ पे। तो एफ पे आने के बाद अब मैं चेक करती हूँ, जी पे आने के बाद अब मैं चेक करती हूँ कि एफ का डिस्टेंस अपडेट होगा या नहीं, क्योंकि ये एक ही आउटवर्ड एरो है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ मुझे एफ के लिए चेक करना है। तो जी के बाद मैं एफ पे जा सकती हूँ विथ मिनिमम डिस्टेंस या नहीं, है मैं चेक कर रही हूँ। तो मेरा प्रीवियस डिस्टेंस क्या है, एफ का 8 है, ठीक है। प्रीवियस डिस्टेंस क्या है मेरा, 8 है। और अभी करंट डिस्टेंस क्या होगा, 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। सो मिनिमम कौन है, 8, 6। तो मिनिमम कौन है, मिनिमम कौन, ये प्रीवियस डिस्टेंस है 8, ठीक है। ये देखो ये प्रीवियस डिस्टेंस है एफ का 8, ठीक है। अब करंट डिस्टेंस कहाँ पे है, 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। सो 6 विंस, वाई, बिकॉज इट इज हैविंग द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। सो इन दोनों में मिनिमम कौन है, 6 है, इसीलिए एफ क्या हो गया मेरा, अपडेट हो गया, और एफ मेरा क्या हो गया, विजिट हो गया, ठीक है। सो दिस इज माई एग्जाम्पल, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, सोर्स जहाँ पे अपडेट कर, सोर्स जहाँ पे ले रहे हो वो हमेशा किस पे रहेगा, 0 पे रहेगा, और बाकी इनिशियल स्टेज पे क्या रहेंगे, इन्फिनिटी पे रहेंगे, ठीक है। सो जैसे जैसे आप ट्रेवर्स करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, डिस्टेंसेस जो प्रीवियस कॉमा करंट, ठीक है। सो आपको कौन सा फंक्शन चलाना है, मीन ऑफ प्रीवियस डिस्टेंस कॉमा करंट डिस्टेंस, इन दोनों में मिनिमम जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका अपडेट होते जाएगा। और जो वर्टाइसेस आप विजिट कर रहे हो उसको हमेशा एक एक बार क्या करते जाना, हर एक स्टेज में उसको कलर करते जाना या उसको शेड करते जाना, ठीक है। और ये कब तक आपको प्रोसेस कर रहे हैं, जब तक सारे वर्टाइसेस आपके विजिट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको क्या करना है, इसको अपडेट करते जाना है, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल यूजिंग द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सो डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स है, उसमें से 2 मेथड्स हम ले रहे हैं, ये आपकी पहली मेथड है। अब हम शुरू करेंगे सेकंड मेथड को, इन्फिनिटी, दैट्स वाई क्या हो गया, वो अपडेट हो गया। ए के बाद नेक्स्ट कौन सा है, सी है। बी के बाद कौन सा है, नेक्स्ट सी है। तो 0 + 3 दैट मीन्स 3, वेदर इट इज लेस देन इन्फिनिटी, यस इट इज लेस देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स सी भी क्या हो जाएगा, अपना अपडेट हो जाएगा। तो कौन से वर्टाइसेस का मेरा डिस्टेंस अपडेट हुआ है, बी और सी का। बाकी सारे वर्टाइसेस किस पे है, इन्फिनिटी पे है, 2 वर्टाइसेस, ठीक है। तो अपडेटेड डिस्टेंस बी और सी का क्या है मेरा, 10 और 3, ठीक है। सो अब आगे मैं कौन सा वर्टाइसेस लूंगी, तो एक मेरा ए कौन सा हो गया, पार्स हो गया। पार्स हो गया मतलब वो विजिट हो गया। तो ए के बाद मैं किस पे जाऊंगी, बी पे जाऊंगी या सी पे जाऊंगी, सी पे जाऊंगी। वाई इट इज सी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ए टू सी है, नॉट कंपेयर्ड विथ ए टू बी। ए टू बी इज नॉट माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए टू सी इज माई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट कौन सा वर्टाइसेस ले रही हूँ, सी ले रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सी को शेड कर दिया है डायग्राम में भी, और मैंने सोर्स सेट में ए के बाद किसको लिखा है, सी को। क्यों, क्योंकि मैंने सी को सिलेक्ट किया। क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस लेस था एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो अगर मैंने सी पे लिया डिस्टेंस तो आगे कैसे होगा। सो सी से मैं कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड हूँ, एक तो मैं सी से कनेक्टेड हूँ बी पे, ठीक है। उसके बाद सी से कनेक्टेड हूँ डी पे, और सी से कनेक्टेड हूँ ई पे, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये सारे कौन से आउटवर्ड एरोज है, इनवर्ड एरोज आपको लेने नहीं है। हमेशा आपको कौन से एरोज लेने हैं, आउटवर्ड एरोज लेने हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने सी लिया है, तो सी के बाद मैं डिस्टेंस चेक करती हूँ बी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं सी से बी पे रीचेबल हूँ। तो सी का डिस्टेंस क्या है, सी है 3 पे,
एंड बी सी टू बी कौन सी कितनी एज है 4, दैट मीन्स 4 + 3 दैट बिकम्स 7. सो 7 इज लेस देन 10, येस इट इज लेस देन 10, दैट्स वाई इट इज अपडेटेड. ठीक है. सो नेक्स्ट सी पे और अपडेटेड सी पे और कहाँ पे मैं पहुँच रही हूँ, डी पे पहुँच रही हूँ. तो डी का प्रीवियस डिस्टेंस क्या है मेरा, इन्फिनिटी है. ठीक है. सो डी का प्रीवियस डिस्टेंस है मेरा इन्फिनिटी. ठीक है. सो अब करंट डिस्टेंस क्या आ रहा है मेरा 8 + 3 दैट बिकम्स 11. सो 11 इज लेस देन इन्फिनिटी, yes it is less than infinity, that's why it is again updated. ठीक है. सो सी पे मैं कहाँ पे पहुँच रही हूँ, ई पे पहुँच रही हूँ. तो ई का प्रीवियस डिस्टेंस क्या था, देखो ये टेबल में ही दिया हुआ है. ई का प्रीवियस डिस्टेंस है मेरा इन्फिनिटी. ठीक है. सो 3 + 2 दैट बिकम्स 5. सो वेदर 5 इज लेस देन इन्फिनिटी, येस इट इज लेस देन इन्फिनिटी. इसीलिए सी से जहाँ जहाँ मैं पहुँच रही हूँ तीनों वर्टाइसेस क्या क्या हो रहा है, अपडेटेड डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज अगेन माय नेक्स्ट स्टेप. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे क्यू पे अपडेटेड डिस्टेंसेस लिखते जा रही हूँ. ठीक है. सो नेक्स्ट में कहाँ क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, ई सिलेक्ट कर रही हूँ. वाई आई एम सिलेक्टिंग ई, बिकॉज बी टू सी टू बी इट इज 4. ठीक है. सी टू डी इट इज 8 एंड सी टू ई इट इज 2. सी टू ई इट इज 2. सो इट इज हैविंग द लेस डिस्टेंस एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टू एजेस. ठीक है. सो दोनों के एजेस अगर मैं वेट्स अगर देख रही हूँ 4, 8 और 2, 4, 8 और 2. सो इसमें से मिनिमम कौन है, सी टू ई इज माई मिनिमम, दैट्स आई एम नेक्स्ट सिलेक्टिंग द वर्टाइसेस एज ई. ठीक है. सो ई को अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो आगे क्या होगा. सो ई पे कौन कौन रीचेबल है, कहाँ कहाँ पे मैं रीचेबल हूँ ई से. ई से मैं रीचेबल हूँ सिर्फ और सिर्फ डी पे. क्यों, क्योंकि दोनों बाकी दोनों जो इन है इनवर्ट्स एरोज है और एक ही कोई क्या है मेरा आउटवर्ड एरो है. ठीक है. सो एक ही मेरा क्या है आउटवर्ड एरो है. तो इसके बाद मैंने ई को सिलेक्ट किया और ई को क्या कर दिया मैंने, ई को मैंने शेड कर दिया. ठीक है. सो ए के बाद सी, सी के बाद ई. ठीक है. सो अब ई टू डी, ई टू डी एक ही एज है दैट इज 9. ठीक है. और करंटली ई का डिस्टेंस कितने पे है, 5 पे है. दैट मीन्स 9 + 5 दैट इज 14. 9 + 5 दैट इज 14. ठीक है. सो और कोई अपडेट होगा क्या, नहीं. क्यों, डी अपडेट होगा क्या, नहीं. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी 11 डिस्टेंस पे है एंड 11 इज लेस देन आवर करंट डिस्टेंस दैट इज 14, इसलिए वो अपडेट नहीं हुआ. ठीक है. सो अब सी के बाद ई के बाद मैं कहाँ पे जाऊँगी, सी के बाद मैं जाऊँगी बी पे. क्यों ऐसा, क्योंकि अब अगर मैंने यहाँ पे अगर इसको विजिट किया रहता और यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस अपडेट हुआ रहता तो मैं डी को विजिट करके बाद में डी के साथ जितने भी कनेक्टेड है वहाँ पे विजिट करती. ठीक है. लेकिन अभी ये अपडेट नहीं हुआ है डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस क्या है, अपडेट नहीं हुआ है. इसलिए मैंने सी टू ई के बाद नेक्स्ट मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, दैट इज सी टू बी एक है 4, सी टू डी एक है 8 एंड सी टू ई एक है 2. ठीक है. सो 2 मेरा क्या था, मिनिमम था, इसलिए मैंने यहाँ पे ई को सिलेक्ट किया था. लेकिन 2 के बाद मिनिमम कौन है, बी है. ठीक है. दैट इज 4 है. ठीक है. तो इसलिए मैंने नेक्स्ट वर्टाइसेस कहाँ पे विजिट किया है, 4. ठीक है. 4 मतलब सॉरी नेक्स्ट वर्टाइसेस बी को मैंने विजिट किया. ठीक है. अब मैं बी पे आने के बाद मेरा कहाँ कहाँ पे आउटवर्ड एरो है, एक तो मेरा है सी पे. ठीक है. एक तो कहाँ पे है मेरा सी पे, लेकिन वो अपडेट होगा क्या डिस्टेंस, नहीं. क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है. ठीक है. अब नॉट विजिटेड वर्टाइसेस कौन सा है, ओनली और ओनली डी है. ठीक है. सो अब डी पे अगर मैं देखती हूँ 7 + 2 दैट इज माई 9 एंड माई अपडेटेड प्रीवियस डिस्टेंस इज 11. ठीक है. सो मेरा अपडेट होगा क्या ये डी पे डिस्टेंस, यस. क्यों, क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन 9. ठीक है. 11 इज ग्रेटर देन 9, तो मिनिमम जो है वो यहाँ पे आएगा, दैट इज मिनिमम कौन है, 9 है, इसलिए वो यहाँ पे 9 आएगा. ठीक है. तो अब कहाँ जाके मेरा डी क्या हो जाएगा, विजिट हो जाएगा और मेरे सोर्स लिस्ट में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज योर फाइनल एग्जाम्पल ऑफ डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम. दिस इज अनदर मेथड. आई थिंक इट इज मोर फ्लेक्सिबल मेथड एंड you can remember easily the shortest distance and the updated distances and the visited vertices also. ठीक है. So I recommend that you can use this method as compared to our previous one. ठीक है. So this is about our Dijkstra's algorithm.
So I hope you understand this algorithm. So in the next video lecture we will see another algorithm. And before that जो कोई भी यूनिवर्सिटी आज क्वेश्चंस थे डिजिक्स्ट्रास पे वो हम ट्राई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके फाइन, थैंक यू.